Today we will discuss about the compiler. Okay. Compiler can execute only machine language programs directly. Hence, a high-level language program must be converted into its equivalent machine language program. Before it can be executed on a computer, this translation is done with the help of a translator program called compiler. Hence, a compiler is a translator program that translates a high-level language program into its equivalent machine language program. A compiler is so called because it compiles a set of machine language instructions for every program instructions of a high-level language. Now, I describe compiler. Compiler is a special program that processes statements written in a particular programming language and turns them into machine language or code that a computer's processor use. Typically, a programmer writes language statements in a language such as Pascal, C, Java, one line at a time using an editor. The file that is created contains what are called the source statements. The programmer then runs the appropriate language compiler specifying the name of the file that contains the source statements. When executed or running the program, the compiler first passes all of the language statements syntactically one after the other and then, in one or more successive stages or passes, builds the output code, making sure that statements that refer to other statements are referred to correctly in the final code. Final code is the machine code. Traditionally, the output of the compilation has been called the object code, or sometimes we are called an object module. The object code is machine code that processor can execute one instruction at a time. You know very well Java programming language, a language used in object-oriented programming, introduced the possibility of compiling output that can run on any computer system platform for which a Java virtual machine or bytecode interpreter is provided to convert the bytecode into instruction that can be executed by the actual hardware processor. Using this virtual machine, the bytecode can optionally be recompiled at the execution platform by just-in-time compiler. We call this Java compiler. देखिए, मैं बेसिकली आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं. एक तो होती है हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकंड इज़ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, बट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जो किसी भी कंप्यूटर पर काम कर सकती है. बट यू नो वेरी वेल योर कंप्यूटर इज अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज, बट इट कांट पॉसिबल. मशीन लैंग्वेज में काम करना पॉसिबल नहीं होता. इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले हमने यूज़ किया था असेंबली लैंग्वेज का. असेंबली लैंग्वेज जो क्या करती थी, एक लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम निमोनिक्स बोलते थे उसमें राइट की जाती थी, और उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसका नाम क्या था, असेंबलर था. सेम उसी टाइप से हमने क्या बनाया, कंपाइलर. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इट्स इक्विवेलेंट मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम यूजिंग ए कंपाइलर इनपुट. To the compiler is the high level language program and its output is the machine language program. Since high level language instructions are macro instructions, the compiler translates each high level language instructions into a set of machine language instructions rather than a single machine language instruction. Hence there is
a one-to-many correspondence between the high-level language instructions of a source program and the machine language instructions of its equivalent object program. That during the process of translating of a source program into its equivalent object program by the compiler, the source program is not under execution. It is only converted into a form that can be executed by the compiler. इसी टाइप से क्या हुआ कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको कन्वर्ट करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बेसिकली क्या लैंग्वेज कौन सी, सी हो गई आपकी, सी प्लस प्लस, बेसिक, जावा, इन सबको भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट थी एक ट्रांसलेटर की, जिससे कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो कंपाइलर वो प्रोग्राम होता है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी सी प्लस प्लस या फिर जावा, इसमें जो भी प्रोग्राम राइट किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहा जाता है। और कंपाइलर क्या करता है, इन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं आपके, ऑब्जेक्ट कोड आपके बाइनरी कोड होते हैं जिसे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब देखिए एग्जांपल, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनपुट, कंपाइलर आउटपुट मशीन लेवल लैंग्वेज में। सोर्स प्रोग्राम वन टू मैनी कॉरेस्पॉन्डेंस, दैट इज द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। कंपाइलर क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है उन सोर्स प्रोग्राम्स को दैट हैव बीन रिटन इन द लैंग्वेज फॉर विच द कंपाइलर इज मीन्ड। For example, Fortran compiler can only translate source program written in Fortran. Fortran compiler जो होगा वो उसी को कन्वर्ट करेगा, उन्हीं सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा जो सोर्स प्रोग्राम आपके Fortran लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो इसलिए हर लैंग्वेज का अपना अपना कंपाइलर होता है, हर लैंग्वेज का। That is to execute both Fortran COBOL programs computer, the computer must have both Fortran and COBOL compilers. अगर COBOL और Fortran को रन करना है तो कंपलसरी है कि उसका कंपाइलर उस सिस्टम में होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल, प्रोग्राम P1 इन हाई लेवल लैंग्वेज L1, कंपाइलर किसके लिए हो गया, लैंग्वेज 1 के लिए। मशीन कोड फॉर P1 के लिए प्रोग्राम P2 इन हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर फॉर लैंग्वेज L2, मशीन कोड फॉर P2। तो एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फॉर वन कंप्यूटर मे नॉट बी द सेम एज द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फॉर अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो सेम नहीं होता दूसरे कंप्यूटर के साथ। तो जरूरी हो जाता है कि ईच कंप्यूटर मस्ट हैव इट्स ओन पर्सनल कंपाइलर फॉर ए लैंग्वेज, से L1। This figure illustrates how machine independence is achieved by using different compilers to translate the same high-level language program to machine language programs of different computers. Example देखिए, compilers for language L1 on computer A के लिए हो गया, compiler for language L1 on computer B के लिए हो गया। अब एग्जीक्यूट हो रहा है कंप्यूटर ए पर, एग्जीक्यूट हो रहा है कंप्यूटर बी पर। अब देखिए रिजल्ट तो सेम ही आना है, आउटपुट तो हमें सेम ही मिलना है, बट क्या हो गया, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर सभी रन हो सकें, तो सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म होता है लैंग्वेज में। अगर सी है तो हम ये नहीं कह सकते कि सी का सॉफ्टवेयर डाल लिया और सी में जावा भी रन हो जाएगी, नहीं। सी के लिए हमें सी का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा और जावा को रन करना है तो जावा के लिए अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका अपना कंपाइलर होगा और जो उसे सपोर्ट करेगा। तो सेपरेट कंपाइलर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम लैंग्वेज ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। इज दैट क्लियर? होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी।